Hello and good afternoon, everyone. This is Abhishek Tiwari here, and I'm welcoming you all on this YouTube platform. This is Abhishek Tiwari, and I'm straightly going to explain you the very second topic of your grammar section. Earlier, I had given you a lecture of, uh, you know, article writing. Right now I'm coming with grammar, the portion first of it, where in grammar students we have to discuss four topics only, which is the tense, uh, narration, and determiners, and of course one is models. Okay, these four topics we have to cover in grammars this year for class 10th session 2021. So students, here I'm just with the very first lecture of ours, which is the tense. Okay, so स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है. मैं टेंस के वीडियोस के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेसिकली कि टेंस जो है, टेंसेस को हम स्टडी करेंगे और एक डिटेल्ड स्टडी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. डोंट यू वरी, एकदम डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड और नॉट. So stay with us. I'm just going to give you everything in detail, but you have just to watch the video clearly, as much clear as you can, as much patiently as you can. Okay, here we are. इसके फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ, अभिषेक तिवारी. Okay students, let us talk about right now. Okay, so students, first of all, let me tell you about what exactly tense is. Okay, फर्स्ट बात करते हैं कि टेंस क्या होता है. ओके, जब हम टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एज यू कैन सी देयर्स अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैज़ बीन गिवन हियर, लाइक आई प्ले फुटबॉल टुडे. ओके, like this, I play football today, you played football yesterday, he will play football tomorrow. Okay, so all in these sentences आप क्या देख रहे हैं? So there's these three different sentences displaying us a varying time. Okay, a varying time and state. Okay, two things that exactly tenses describe. The first one is time, and the second is state of action. Okay, time of action and state of action. So जब हम टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, so टेंस क्या होता है? Tense is a method, or is a manner of displaying a sentence or displaying anything through the medium of sentences. Okay, and in this medium of sentences you would be able to display two things. Okay, what you would be able to display? The first one is the time of action. Okay, first you will be able to explain the time of action, and the second thing is the state of action. Okay, so ये दोनों चीज़ें आप बता पाने में एबल होते हैं, टाइम ऑफ एंड स्टेट ऑफ एक्शन. ओके, तो ये तीनों सेंटेंस को आप देखते हैं, सेंटेंस 1 and 2 and 3. जो फर्स्ट सेंटेंस है, इट शोज़ आई प्ले फुटबॉल टुडे, तो इट शोज़ इट शोज़ द प्रेजेंट टेंस. ओके, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द टुडे. ओके, आज की एक्टिविटी के बारे में बात करा. इट मीन्स आज जो होता है, टुडे जो होता है, इट जस्ट प्रेजेंट टाइम. सो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है. दूसरे सेंटेंस में येस्टरडे की बात हो रही है. ओके, येस्टरडे जहाँ पे पास्ट टाइम शो हो रहा है. एंड द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस जो है इट शोज़ फ्यूचर टाइम. ओके, यहाँ आपको एक फ्यूचर टाइम के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है. सो थर्ड सेंटेंस में will play football tomorrow means the day after today. So if it means the day which has been has yet to become. So इस तरह से तीन चीज़ों के बारे में, यहाँ तीन टाइम्स के बारे में हम लोगों ने देखा. Okay, so if you see here, so there are three main times or tenses in English. Okay, तो इससे एक चीज़ सामने आता है कि there are three main time and tenses in English. The first one is present tense. Okay, पहले को हम present tense कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं past tense, and the third is of course future tense. Okay, तो present, past and future, or present, past and future, these are three
टेंसेस इन इंग्लिश, ओके, विच वी एक्चुअली स्टडी। तो 3 टेंस होता है इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द future tense. Okay, so if you talk about present tense, so present tense refers verb that refers present tense is said to be in the present tense. Okay, अगर कोई verb, okay, कोई वर्ब जो है जो रिफ़र करता है प्रेजेंट टाइम को, ओके, अगर कोई वर्ब, एक सेंटेंस का वर्ब है, अगर वो रिफ़र कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, सो इट इज़ सेड टू बी द इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपने फर्स्ट सेंटेंस देखा, यहाँ लिखा है आई प्ले फुटबॉल टुडे। सो दिस सेंटेंस यू नो इट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, सो इट इज़ सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस। सेकेंड सेंटेंस है द वर्ब दैट रिफर्स टू द पास्ट टाइम, ओके, अगर वो पास्ट टाइम को रिफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। और इफ़ द सेंटेंस रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इट इज़ सेड टू बी ऑफ फ्यूचर टेंस, ओके, तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, जहाँ पे फ्यूचर सेंस रिवील हो, फ्यूचर टाइम रिवील हो, ओके, ऑल राइट। आफ्टर इट स्टूडेंट्स, सो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को देखें, ओके, तो सिंपली आई राइट, हियर द सेंटेंस इज आई राइट मीन्स मैं लिखता हूँ, आई राइट, ओके, बेसिकली आई ट्राई टू गिव एवरीथिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, डोंट यू वरी, ओके, सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन एवरीथिंग इन इंग्लिश, so you will get something little in Hindi also, okay, as I know the basis and of CBSE students actually of my localities, so therefore on a public demand I'm just explaining you everything in both the languages, okay. So this sentence reveals a simple present tense, okay, means each tense, each tenses, these 3 tenses has 4 forms, okay, each denotes various shades of meanings। हर एक टेंस जो होता है वो एक वेरियस सेंस ऑफ मीनिंग्स को रिवील करता है, ओके, वेरियस सेंस ऑफ मीनिंग्स को रिवील करता है। मीन्स अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या पास्ट या फ्यूचर की, सेपरेटली ये क्या करते हैं, अलग अलग सेंस ऑफ मीनिंग्स को ये शेड करते हैं, रेफ़र करते हैं। सो व्हाट आर दीज डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स, लेट मी टेल यू राइट हियर, ओके, कि वो डिफरेंट जो 3 टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स क्या होते हैं जिनको वो रिवील करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट मीन्स मैं लिखता हूँ, ओके, द सेंटेंस सेकेंड इट्स शोइंग दैट आई एम राइटिंग, ओके, सेकेंड सेंटेंस शो कर रहा है कि मैं लिखता हूँ, आई एम राइटिंग, ओके। इफ आई एम राइटिंग देयर इज अ कंटिन्यूटी, इट मीन्स द वर्क हैज़ नॉट बीन डन। द फर्स्ट सेंटेंस shows that I write means I write usually in present in simple. It's simply a statement, a simple statement. In second sentence, I am writing. It means the work, the action. Okay, the action, the verb which denotes an action. This action is continue. It's continuing. Therefore, this one is known as present कंटिन्यूस टेंस, ओके, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानेंगे। फर्स्ट में एक सिंपल प्रेजेंट एक्टिविटी दिखाई जा रही है, तो इसलिए हम उसको सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, या उसी को हम प्रेजेंट ऑफ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं। इंडेफिनिट है ये, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ कुछ डेफिनिट नहीं है, तो उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं, लेकिन वो इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, ओके। नेक्स्ट आफ्टर next sentence, I have written, okay, here the sentence expressing I have written. So the present tense here once again a present tense is showing, यहाँ भी एक present tense ही show रहा है, but exactly the present tense is showing something which has been perfectly done, okay, कुछ चीज़ जो perfectly हो चुकी है उसको express कर रहा है, so therefore it is a perfect tense, okay. Then after I have been writing, okay, there's another thing, okay, I have been writing, so there's something has been mixture of both the perfect and continuous, यहाँ पे दोनों का एक continuous और perfect का mixture है, तो इसको present perfect continuous कहते हैं। Here
टाइम, ओके, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम इट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन। इस सेंटेंसेस में इस तरह के क्या होते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समय भी दिए रहते हैं, जिससे आप वर्क को वर्क दैट हैज़ बीन डन, जो कि हो चुका है ना, मीन्स बट you have just to express the time when the work has been done, वो भी आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट टेंस ही हो गए। तो ऐसे ही सिमिलरली वाइस वर्सा क्या होता है कि जो तीनों टाइप के टेंस होते हैं उनके भी ऐसे 4 फॉर्म्स होते हैं। सो सिंपली हम उसको अगर हम नेम दें तो बेसिकली क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जो टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के जैसे 4 पार्ट्स होते हैं, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो इंडेफिनिट जो होता है, अब उसी तरह से इंडेफिनिट जो होता है उसी तरीके से उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, ओके, फिर परफेक्ट टेंस होता है और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। So these are 4 types of present tense. Similarly, the past tense will also be like this: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Similarly, future tense भी वैसे ही होता है: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay. So including all, अगर आप देखें, so there are total 4 3 12 types of tenses or parts of tenses, okay. So कुल मिला करके 12 types of parts of tenses होते हैं, which I have to explain you and which you have to study right here, okay students। तो आपको समझ में आया कि ये tenses जो है 3 tense होते हैं और 3 tense के जो हैं each and every tense has 4 parts, so overall you have to study 12 sub parts of the tenses, okay। So 12 type of sentences you will be able to read, okay, all right। So आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसकी डेफिनेशन पे आएँ स्टूडेंट्स तो आपको मिलता है द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इफ़ यू टॉक अबाउट टेंस, सो द टेंस ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का जो टेंस होता है, इट शोज़ नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, केवल टाइम ऑफ एन एक्शन ही नहीं दिखाती है बट स्टेट ऑफ एन एक्शन भी एक्सप्रेस करता है टेंस, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यहाँ सिंपली अगर आप देखें द फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं कि जो वर्ब है ना उसका जो टेंस है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब टाइम एट विच एन इवेंट ऑकर्स, कि वो किस टाइम पे एक इवेंट ऑकर हुआ ना, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस एंड इनकम्प्लीटनेस वो उसकी स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेंस को लिखते हैं। अब सिंपली आपने लिखा कि आई रोट, मैंने लिख लिया या लिखा, ओके, सिंपली आप उसको बोलते हैं आई रोट, ओके। इफ़ यू हैव फिनिश्ड रिसेंटली सो यू वुड राइट it means it has been an act of past, okay। So you would simply write, you would simply say that that the work, the time of work that has been finished and the degree of completeness is quite appropriate. So the second sentence, it shows I was writing, it means I was writing in past but yet not it is not showing any completeness or any degree of completeness, okay। So this is another thing, okay। So I think स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि टेंस एक्चुअली किस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो ये टेंस के टोटल 12 टाइप्स हो गए। एक ब्रॉड ये सबको एक्चुअली मालूम होता है कि टेंस जो है वो बेसिकली क्या हैं। आप इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, उसको एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, और इसके साथ साथ जो है आपको मैंने एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर में। आपने देखा कि आपको मैंने 3 टेंस एंड इट्स सब टाइप्स भी हमने स्टडी किए, एंड आई आल्सो टोल्ड यू थ्रू द एग्जांपल्स राइट हियर। आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग बट सी, ओके, everything this is what actually we don't have to study, क्योंकि वॉइस इस बार कट चुका है तो वो हमें इस बार पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ here
फ्यू सेंटेंसेस आर बीन गिवन यू नो, जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसमें एक एक्सरसाइज फर्स्ट है ये, यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टेंसेस ऑफ द वर्ब। सो सिंपली आप एक्सरसाइज करेंगे, एवरी स्टूडेंट वुड डू एन एक्सरसाइज, वो करेगा और उसके बाद उसको सेंड इट टू मी द सेम ऑन इंडिविजुअली और इन द ग्रुप एज वेल। ठीक है, आप उसको इंडिविजुअली या ग्रुप में आप सेंड करेंगे टेंसेस की रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन कितनी है आपको उसको देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके जो है डिटेल्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस को। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस जो होता है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके कुल मिला करके 4 पार्ट होते हैं। तो जब हम 4 पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें सबसे पहला होता है इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ओके, सो जो सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे अब सबके जो हैं इंडेफिनिट, अगर इसको हम बहुत डीपली हम आपको बताएंगे, आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो जो इंडेफिनिट होता है ना, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट या सिंपल या इंडेफिनिट सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। दूसरा होता है उसको हम निगेटिव कहते हैं, और तीसरा जो होता है इसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। ओके, so there are 3 types of sentences of each and every part of tense. The first one is indefinite, present indefinite. It has 3 part, affirmative, negative and interrogative sentences. Okay, मतलब 3 टाइप के sentences में बनते हैं। तो जो इसका अफर्मेटिव है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में कोई भी ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं होता है। ओके, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी। अब आप जान लीजिए ऑक्सिलरी क्या होता है, जिसको आप सिंपली जिसको मैं ऑक्सिलरी कह रहा हूँ उसको सिंपली आप क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या कहते हैं आप उसको, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड ना, विल, शैल, इनका इस्तेमाल इसमें नहीं होता है अफर्मेटिव में। दे आर सिंपली रिटन। ओके, दे आर सिंपली रिटन इन simply, it means if they are simple, so they are simply written without using any auxiliaries. Okay, the examples are I write later. So अगर आप इस चीज़ को देखें, I write later. okay, तो इस चीज़ को अगर आप देखें I write a later, मैं आपको इसको आइडेंटिफाई भी कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। I write later. okay, बट यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के यहाँ एक ही पार्ट दिया है, केवल सब्जेक्ट है, फिर वहाँ वर्ब से या ऑक्सिलरी से प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, केवल मेन वर्ब है। वर्ब 2 टाइप के अगर आप देखेंगे तो मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, या इसके अलावा ऑक्सिलरीज में फिर ना अब ऑक्सिलरीज जब आप पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑक्सिलरीज में 2 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं और दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जॉइनिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब मतलब ऑक्सिलरीज होते हैं, और जो मेन वर्ब होते हैं उसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब जो है ना, जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ओके, ये मेन वर्ब है। और तीसरा जो है अ लेटर, ये क्या है, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये सेंटेंस में, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यही इसका स्ट्रक्चर भी होता है स्टूडेंट्स, कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देयर इज़ नो ऑक्सिलरी, सो देयरफॉर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है पैटर्न, इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ओके, ऑल राइट।
कोई भी दिक्कत समझ में आती है आप मुझसे स्ट्रेटली आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं दूसरे की, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। सॉरी, अभी सिंपल में जो है ये अफर्मेटिव था। जब हम निगेटिव सेंटेंस इसका लिखते हैं, ठीक है, इसके निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम निगेटिव से डू और डज नाम का ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, डू और डज। स्टूडेंट मैं देखता हूँ जब आप क्वेश्चंस मुझसे करते हैं या अपने टीचर से करते हैं, ठीक है, सो आई फील रियली वेरी एम्बैरस कि आप जिस तरह से एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, अक्सर आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके गलत होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी दिखाई पड़ती है आपके लिखने पढ़ने में। इट शोज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ एक्शन, ठीक है, आपकी ओर से मेहनत कम किया गया है, जो भी कारण है क्लास 8 तक आपने जो स्टडी नहीं किया है 9th और इसके लेवल पे, बट नेवरदलेस इस बार आप उस चीज़ों को जान जाएंगे। सो यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि डूडस का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब जो होता है ना, जहाँ आपके अफर्मेटिव में क्या था, अफर्मेटिव में केवल जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, ठीक है, उसमें भी एस और ई एस के फॉर्म में, एस और ई एस के फॉर्म में हम यूज़ करते थे। किसके लिए? जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जो वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबके साथ होगा, लेकिन एस और ई एस यूज होगा, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल एस और ई एस लगा के नहीं करेंगे वर्ब में। ही, सी, इट और नेम्स, ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, उसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, आप एस और ई एस लगा लेंगे। लाइक ही गोज़, ओके, आप लिखेंगे ही गोज़, एस और ई एस लगाएंगे, पर आई लिखेंगे आई गो, वी गो, दे गो, ओके, लेकिन ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, ओके, और राकेश गोज़, तो आप इस तरह से उसको राइट करेंगे, ओके, ऑलराइट। सो ये अफर्मेटिव्स हो गया। और निगेटिव जब आप लिखते हैं तो निगेटिव में वही एस और ई एस मिस हो जाता है वर्ब से, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, लेकिन एस और ई एस किसी कंडीशन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप डू डस का यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ना यहाँ क्या करेंगे, आई डू नॉट, ओके, आई डू नॉट ईट, ओके। तो ये अगर एक सेंटेंस है तो आई के साथ आपने डू लगाया और नॉट लगा दिया, तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट्स वगैरह नहीं लिखना, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, आई डू नॉट ईट, तो आई के साथ डू लगता है ना। अगर ही होता तो ही डज नॉट, अगर ही होता यहाँ पे, ही होने की कंडीशन पे ही डज नॉट ईट हो जाता, गॉट इट। शी होता तो शी डज नॉट ईट हो जाता, ओके, लेकिन दे होगा तो दे डू नॉट ईट, सिंपली ऐसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, निगेटिव भी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ओके। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव लिखते हैं या अफर्मेटिव लिखते हैं, तो आप लिखते हैं आई ना, आई डू नॉट रन, ओके, मैं दौड़ता नहीं हूँ, तो आपने ये लिखा। फिर दूसरी तरफ आप क्या करिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी है ना, मतलब कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर दीजिए, ठीक है। तो हमेशा क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन पुटअप करिए ना, तो इंडिया जो इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे कि आप ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के आगे करके क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो डू आई नॉट रन, ये हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डू आई नॉट रन ना, डज सी वर्क हार्ड, ओके, डू यू गो टू स्कूल। सो सिंपली इस तरह से, डू यू डू यू स्टडी लाइक दिस, तो किसी भी तरीके से आप एक क्वेश्चन करेंगे तो डू और डस का इस्तेमाल करेंगे, वो भी उसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब,
देन सब्जेक्ट, ओके, देन आफ्टर यू नो मेन वर्ब। तो ये इसका होगा कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक दिस यू हैव टू राइट। क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी वीडियोस में अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और बहुत डिटेल में बताएंगे आपको इसके आगे से। तो फिर हम कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पढ़ेंगे, तो सब कुछ डिटेल में होगा, डोंट वरी। अगले लेक्चर में सब ब्रॉडली स्टडी करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए लेक्चर को, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बहुत जल्द ही फिर अगली वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगी। तो आप स्टे कनेक्टेड विथ मी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।